ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਟੈਲਿੰਗ ਚ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? जेनिफर, आप इंडिया से कहाँ से? मैं इंदौर के पास महू मध्य प्रदेश। मैं भी पूछूं, सेक्रेटरी सैमुअल, ही इज आल्सो आस्क। नो प्रॉब्लम, मेरे को आदत है शुरू से टीवी प्रोग्राम्स में। कई बार तो इतने शॉर्ट नोटिस पे होता था, स्कूल कॉलेज। ICC presents Heaven's Gate. Jesus said, I am the door. If anyone enters through me, he shall be saved. हेलो जैमसी की एंड एक दफ़ा फिर ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। रूबरू होने का खुदावंद दे मौका आता, ਅਸੀਂ खुदावंद दे बहुत शुक्रगुजार करते हैं। ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਕ ਦफ़ਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ रूबरू होण होर जा रहे हैं और साढ़े नाल जो स्टूडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੈਂ
ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਪਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਜੀ, ਉਸ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨਗੇ। पास्टर जी, इफ यू कैन काइंडली शॉर्ट प्रेयर। आगे आइए हम प्रार्थना में शामिल हों। अनुग्रहकारी करुणामय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस मुबारक समय के लिए। प्रभु, आपने अपने बेटे बेटियों के साथ अपने वचन को, गवाही को बांटने का अवसर दिया। करुणामय पिता परमेश्वर, इस प्रोग्राम को जितने भी मेरे भाई बहन देखते और सुनते हैं उन सबों को आशीष मिले और आज की शाम मुबारक हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। दोस्तों, भैनों ਤੇ ਭਾਈਓ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਯੂ ਐਂਡ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀਲੈਂਡ ਟੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਫਰਮ ਲਾਸਟ 33 ਇਅਰਸ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਸਾਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮੁਕਰਰ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੈਮੂਅਲਸ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ, ਮਰਾਠੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਤਾਮਿਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਆਸਕ ਆਵਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸੈਮੂਅਲ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਹੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਸ ਭਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੀਫਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰੀਨ ਪੌਲ, ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਏ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਆਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਔਰ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਲੀਫਲੈਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਦੈਟ ਪਲੇਸ। Asian Cavalry Church presents Father's Heart on Saturday the 25th of October 2014. Guest speakers include Sister Shireen Paul and a testimony by Sister Sangeeta Mattu at the Holy Trinity Church, Trinity Street, West Bromwich, B70 6LF. Morning tea will be provided at 11 a.m. till 11:45 and the service will begin at 12 p.m. till 4. Charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Proverbs 31 verse 30. जी, जो इन्फॉर्मेशन तक पहुँच गई है, अगर तो ज़रूर इस तो ज़्यादा होर जानकारी हासिल करनी चाहती हो तो जरूर सानू टैलीफोन के जरिए साडे नाल गल कर सकते हो। तो लो, मैं ज़्यादा समा ना लेंदे हुए मैं अपने जो मेहमान आज द स्टूडियो साडे नाल आए ने। सब तो पहले मेरे राइट हैंड ते जेनिफर जी, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एंड यू मेड एफर्ट टू कम एंड वेयर आर यू फ्रॉम इंडिया? यू सेड मैं मध्य प्रदेश से हूँ। आई एम फ्रॉम एमपी। या ओके, राइट। आप कितनी देर से यहाँ पे? मैं मैरिज के बाद इमीडिएटली आफ्टर मैरिज आई केम हियर इन 2008। ओके। और एमपी में एक जगह है महू, मैं वहाँ को बिलोंग करती हूँ और बस फिर तब से यहीं हूँ मैं। उसके पहले भी मैं यूके आई थी कई बार, ऑक्सफोर्ड कन्वेंशन में आई थी जी। और पर खुदा मुझे यहीं लेके आ गया। मेरे हस्बैंड यहाँ पर है, उनका बिजनेस है, तो देन आई केम। ठीक,
चलिए आपके साथ बात हम करेंगे बाद में। आपसे ये जो टैलेंट खुदा ने आपको दिया वो भी देखेंगे सुनेंगे। और माय लेफ्ट हैंड साइड आई शुड से पास्टर जी फ्रॉम इंडिया, लुधियाना पंजाब से आए, पास्टर सलीम खान जी। पास्टर जी वी वेलकम यू सर। थैंक यू सर। एंड वी रोज़ की तरह साढ़े अपने ही इस प्रोग्राम ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ जो करता पंजाबी च कहते कि साढ़े जनरल सैकटरी सैमुअल साहब। एंड वी वेलकम यू ऑल स्टूडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਯੂ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਲ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੈਨੀਫਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ੀਜ਼ ਸੁਣੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ? When did you come from India? कल ही आए जी सर। ओके राइट। आप पहले भी आए यहाँ पे? जी मैं पहले भी आया एक बार। ओके राइट राइट। एंड कितनी देर के लिए आप यहाँ पे? मैं सिर्फ 18 दिन के लिए। सिर्फ 18 दिन के लिए? ये तो कुछ भी नहीं। इंडिया से तो लोग साल 6 मंथ से पहले कुछ जाना नहीं मानता। एक्चुअली मेरी इंडिया में कुछ कन्वेंशंस हैं। अच्छा। इलाहाबाद में है, धारीवाल में है, उसकी वजह से मुझे वापस लौटना पड़ा। ठीक ठीक। तो आप कहाँ से कितनी देर से आप खुदा उनकी खिदमत में? सर मैं 97 से मिनिस्ट्री में हूँ और पिछले 97 से ही लुधियाना में हूँ। अच्छा 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 अच्छा। जी हाँ। दैट्स गुड। चलिए हम आपसे थोड़ी बात करेंगे। अब आज आप क्या लेके आए हमारे व्यूअर्स के लिए जो आपको लाखों लोग देख रहे हैं आपको? प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे पास मेरी एक छोटी गवाही है जी। और छोटा संदेश है जो प्रभु के वचन से बोलने के लिए प्रभु अनुग्रह करेंगे। जी बोलिए। जी जी। मैं अपनी गवाही शेयर करना चाहता हूँ। मेरा नाम पास्टर सलीम खान है और प्रभु ने मुझे एक मुस्लिम परिवार से चुना। मैं एक मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ मेरा और उसी मुसलमान ख़ानदान के अंदर मेरी परवरिश हुई। सन 1992 में मैंने प्रभु के बारे में एक प्रार्थना सभा में सुना। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल के अंदर एक हॉल था, उधर एक प्रार्थना सभा चलती थी और मैंने वहाँ परमेश्वर के वचन को सुना। और परमेश्वर का वचन सुनने के बाद मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया। और तब मैं 8th क्लास में पढ़ता था और क्योंकि एक मुसलमान ख़ानदान से आने के कारण पहले मैं डरता था कि शायद मेरे परिवार वाले इस बात के लिए विरोध करेंगे या कुछ दबाव मुझ पर रखेंगे, लेकिन मैंने परमेश्वर के वचन को सुना, परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जाना और ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय था कि मेरे पाप केवल यीशु मसीह क्षमा कर सकते हैं। और प्रभु को जानने के बाद बपतिस्मा लिया। 93 में मेरा बपतिस्मा हुआ। 92 में प्रभु को जाना, 93 में बपतिस्मा हुआ और 97 में प्रभु ने मिनिस्ट्री में निकलने के लिए अनुग्रह दिया। मैं 92 से लेकर 97 तक लगातार एक चर्च में एक विश्वासी के रूप में जाता रहा। प्रार्थना सभा को अटेंड करता था और चर्च के कई कामों में हिस्सा लेता था, पार्टिसिपेट करता था। और पार्टिसिपेशन के दौरान जब पार्टिसिपेट करता था तब कई परमेश्वर के दासगण मतलब प्रोफेसी करते थे कि परमेश्वर ने आपको चुना है और आप एक दिन प्रभु की सेवा करेंगे। और कई प्रोफेसी मेरे लिए हुई उस दौरान में। कई चर्च की बहनें, बुजुर्ग और कई भाई लोग ये कहा करते थे कि परमेश्वर ने आपको चुना है, आप एक दिन परमेश्वर की सेवा करेंगे। लेकिन मेरे परिवार की इच्छा थी कि मैं पढ़ लिख कर कोई काम करूं और मेरे परिवार की इच्छा थी कि मैं बहुत पढ़ाई करूं और उन्होंने इसके लिए मुझे उत्साहित भी किया और मेरी मदद भी किया कि मैं पढ़ सकूं। 97 में मेरी मदर को एक बीमारी हुई। उनको कई अस्पतालों में हमने चेकअप करवाया, उनका इलाज करवाया और कई जगह उनको लेकर गए। उनका पेट फूलने लगा और पता नहीं चलता था कि इनको बीमारी क्या है। अंत में हमें सजेस्ट किया गया कि इनको पीजीआई हॉस्पिटल जो कि चंडीगढ़ में है, नॉर्थ इंडिया का बेस्ट हॉस्पिटल है, उसमें इनका इलाज करवाया जाए। तो मैं अपनी मदर को उधर हम लोग लेकर गए और जब वहाँ पर उनका इलाज शुरू किया गया तो डॉक्टरों को समझ ही ना आया उनको बीमारी क्या है। कई महीने तक इलाज करने के बाद उन्होंने एक फाइनली ब्लाइंड डायग्नोज किया कि हमें लगता है इनको कैंसर है और वो भी आखिरी स्टेज का और इनके बचने की उम्मीद नहीं है, हम इनका ऑपरेशन भी नहीं कर पाएंगे, आप इनको अपने घर ले जाइए। और ये भी एक क्लियर डायग्नोज नहीं था। तभी उसी दौरान एक परमेश्वर के दास मेरी मदर के लिए दुआ करने के लिए पीजीआई हॉस्पिटल में आए और वो प्रार्थना करने के बाद कैंपस में मुझे मिले बाहर। उन्होंने मुझसे कहा कि परमेश्वर ने आपको चुना है और वो मुझे इतने अच्छे से नहीं जानते थे तो भी उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने
आपको चुना है, मुझे कहा, और उन्होंने कहा कि परमेश्वर आपको अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करेगा, सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा। जी। मुझे उनकी बात सुन के थोड़ा गुस्सा भी आया कि इधर मेरी माँ मरी है और इतने सालों से मेरे पीछे पड़े हैं, पास्टर बन, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना। और लेकिन क्योंकि उस समय ऐसा था, मैंने कुछ नहीं कहा। और जब वो मेरी मदर के लिए दुआ करके गए, उसके बाद से मेरी मदर को काफ़ी फ़र्क पड़ने लगा। तब मैंने एक निर्णय लिया, मैंने कहा प्रभु अगर ये बच गई, मैं आज एक फैसला लेता हूँ। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि ये बचेगी नहीं, ये मरेगी, और डॉक्टरों ने कहा, मेडिकल लाइन में जो काम करते हैं उन्होंने कहा कि इनके बचने की उम्मीद नहीं। तब मैंने एक निर्णय लिया कि अगर प्रभु ये बच गए तो मैं अपना जीवन आपको अर्पित कर दूंगा और मैं पूरी तरह से आपकी सेवा करूंगा और पूरी दुनिया में जाके बताऊंगा कि आप ही केवल जीवित परमेश्वर हैं जो दुआओं को सुनते और उत्तर देते हैं। 97 में मैंने दुआ की और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मेरी माँ आज भी जीवित है। प्रभु को इस बात के लिए महिमा मिले। और अपने कमिटमेंट के अनुसार उसके बाद मैं लुधियाना में आ गया और तब से लेकर अब तक लुधियाना में ही प्रभु की खिदमत कर रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु के इस बड़े जलाली काम के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया। मैं ये कह सकता हूँ, पूरी दृढ़ता से कह सकता हूँ कि मैंने परमेश्वर को नहीं, परमेश्वर ने मुझे चुना है। प्रेज लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद हो। ये मेरी एक छोटी गवाही। दैट्स वंडरफुल। अच्छा, आप आज हमारे व्यूज़ के लिए क्या लेके आए हैं? मेरे पास परमेश्वर के वचन से बोलने के लिए एक छोटा सा संदेश है जी। और मैं विश्वास करता हूँ इस संदेश को जब मैंने पाया तो मैंने बहुत आशीष पाई। पवित्र आत्मा के द्वारा उपवास प्रार्थना में मैंने संदेश को पाया और मैंने बहुत आशीष पाई। और मैं चाहता हूँ कि जो आशीष मैंने पाई वो मेरे तक सीमित ना रहे, बाकी सब भाई बहनों तक भी पहुँचे। प्रेज लॉर्ड। जी जी, वो जो आपने परमेश्वर से पाया वो क्या था, वो आप हमारे व्यूअर से शेयर कीजिए। जी, मैं चाहूँगा कि हम एक छोटी प्रार्थना के साथ आरंभ करते हैं। जी। अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस मुबारक समय के लिए। प्रभु, आपका वचन, बाइबल कहता है कि जब आपका वचन खुलता है तब प्रकाश होता है। और आज आपका वचन खुलने से हर एक श्रोतागण, हर एक दर्शक जो आज इस प्रोग्राम को देखता है प्रभु, उनके जीवन में एक नया प्रकाश आए, अंधकार और अंधकार के काम उनके जीवन से दूर हों। आए मेरे राजा, आपकी ज्योति आज उनके जीवन में चमके और वो हर परेशानी से आज़ाद हों। अपने वचन के द्वारा आप अपने लोगों को चंगा करें। आपने कहा मैं अपना वचन भेजकर अपने लोगों को चंगा करता हूँ। धन्यवाद प्रभु कि आप ऐसा करने जा रहे हैं, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। जी, आज हम जो परमेश्वर के वचन में से जिस विषय के ऊपर मनन करेंगे वो है लूका रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय और उसकी 11 आयत को हम लोग पढ़ेंगे और एक वचन के ऊपर हम थोड़े समय के लिए मनन करेंगे। मैं चाहूँगा मैं इसको हिंदी में पढ़ देता हूँ और अगर पंजाबी में भी इसको पढ़ दिया जाए। हिंदी में पढ़ देंगे। हिंदी में पढ़ देंगे जी, तो ये बहुत अच्छा होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। जी, लूका उसका 8 अध्याय और उसकी 11 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। जी, शुरू कर देंगे। लूका की किताब 8 अध्याय की जो 11 आयत है वो बड़ी महत्वपूर्ण आयत है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो ये बीज बोने वाले का दृष्टांत है। प्रभु यीशु मसीह ने जब भी 8 की 11 पढ़े सर प्लीज। दुशांत ये है, बीज तो परमेश्वर का वचन है। जी धन्यवाद। लूका 8:11 में प्रभु यीशु मसीह ने एक बीज बोने वाले का उदाहरण दिया। और हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, चारों इंजील में, चारों सुसमाचार में, जब भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया तो उन्होंने कोई ना कोई उदाहरण, दृष्टांत देकर अपनी बात को रखा, अपनी बात को समझाया सबको। और यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है बीज बोने वाले का उदाहरण। और इसकी शुरुआत की जब बीज बोने वाले के उदाहरण का जो एक्सप्लेनेशन, जब यीशु मसीह उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको खोलते हैं, उसको बयान करते हैं, तब यीशु मसीह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। और बात यह है, यीशु मसीह ने कहा दृष्टांत का अर्थ यह है बीज परमेश्वर का वचन है। बीज परमेश्वर का वचन है। बाइबल बताती है, इंग्लिश की बाइबल में लिखा है द सीड इज वर्ड ऑफ गॉड। सीड इज वर्ड ऑफ गॉड। बीज जो है वो
वचन है। वचन को अगर आप बड़े गौर से इस बात के ऊपर ध्यान दें, द सीड इज वर्ड, यानी बीज एक शब्द है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि शब्द भी एक बीज है। यानी ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मसीहत में आने के बाद हम अपने मुंह से क्या बोलते हैं, हमारे मुंह का जो शब्द है वो एक बीज है। और प्रकृति और परमेश्वर का नियम है, इंसान जो कुछ अपने मुंह से बोलेगा, यानी जो कुछ उसके मुंह से निकलेगा, अगर वो एक बीज है तो प्रकृति और परमेश्वर का नियम है, इंसान जो बोएगा वही काटेगा। कभी नहीं ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति अपने खेत में धान बोकर आया हो और गेहूं काट के लाया हो, मकई बोकर आया हो और बाजरा काट के लाया हो। बाइबल कहती है इंसान जो बोएगा वो काटेगा। और अभी हमने पढ़ा बीज शब्द है, यानी शब्द एक बीज है। हमें अपने शब्दों के ऊपर बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। नीति वचन की किताब उसके 18 अध्याय की 21 आयत में लिखा है, 18 अध्याय की 21 आयत में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, और जो उसको काम में लाना जानते हैं वो उसका फल भोगते हैं। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रीति से बताता है कि हमें अपने शब्दों पे ध्यान देना है। हम क्या बोल रहे हैं, हमारे मुंह के शब्द एक बीज हैं, जो बोएंगे वो पक्का हमें एक दिन काटना पड़ेगा। हमें अपने शब्दों पे ध्यान देना है। मसीहत में आने से पहले भी ये महत्वपूर्ण है और मसीहत में आने के बाद भी ये बात और अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है। जबकि हम तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा का दान पाते हैं, प्रभु के साथ खराई से चलते हैं। प्रभु में आने के बाद जबकि हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने मुंह से क्या बोलते हैं। याकूब की किताब उसके 3 अध्याय को अगर आप पढ़ते हैं तो वहां 3 की 7 से लेकर 12 तक जब आप पढ़ते हैं तो वहां मालूम पड़ता है, वहां लिखा है हमारे मुंह में आशीष और शराब दोनों है। यानी मुंह में जीवन और मृत्यु है, मुंह में आशीष और शराब है। हम जो बोएंगे हमें एक दिन वो यकीनन काटना पड़ेगा। हमें अपने शब्दों पे ध्यान देना चाहिए। मैं कहता हूं यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। बाइबल कहती है कि इसके पीछे ईश्वरीय सामर्थ्य ने काम किया। वचन कहता है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा यीशु को मुर्दों में से जिलाया। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहता हूं कि यीशु मसीह ने अपने जीते जी कई बार इस बात को अंगीकार किया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं इसको फिर से खड़ा कर दूंगा, मुझे मार दो, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। यानी उनकी वो सकारात्मक जो बात थी, उनका जो बीज था, जो सकारात्मक बात थी, उस बात के द्वारा वो मुर्दों में से, मैं कहता हूं ये भी एक अच्छी बात है कि वो मुर्दों में से जी उठे। और ये भी एक बड़ी सामर्थ्य है जो हम अपने मुंह से बोलते हैं। हमें बहुत सोच समझ कर अपने मुंह से बोलना चाहिए। मैं कई लोगों को मैंने अपनी सेवकाई के दौरान गलत अंगीकार करते देखा। मैंने कई लोगों को अपनी सेवकाई के दौरान, कई भाई बहनों को अपने जीवन में कुछ गलत कन्फेशन करते देखा। और वो गलत कन्फेशन ये करते हैं, मुझे मालूम है मेरे घर के हालात कभी बदल ही नहीं सकते। और मैं देखता हूं कि बाद में वो उन्हीं हालात में जीवन जीते हैं। कई लोग अपने बच्चों के विषय में इस बात को बोलते हैं और अक्सर बोलते हैं, पूरा साल भर बोलते रहेंगे अपने बच्चों के विषय में, मुझे मालूम है तो पक्का फेल होगा। और ऐसे बच्चे जो हैं वो अक्सर देखने को मिलता है कि वो नीचे से सबसे एंड में आते हैं। वो फर्स्ट तो आते हैं लेकिन निचली साइड से, और वो अक्सर फेल हो जाते हैं। यानी हम अपने मुंह से जो कुछ बोलते हैं उसका बड़ा महत्व है। बाइबल कहती है हमारे जो मुंह के शब्द हैं वो एक बीज हैं, और हमें अपने मुंह के शब्दों पे ध्यान देना है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। बाइबल में हम कई ऐसे उदाहरण पढ़ सकते हैं, बाइबल में कई ऐसी बातें हम देख सकते हैं जिन लोगों ने अपने मुंह से अच्छा अंगीकार किया, उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुए। हमारा विश्वास और हमारा कन्फेशन, यानी हमारे मुंह के शब्द एक समान होने चाहिए। कई बार हमारा विश्वास अलग होता है और हमारे मुंह के शब्द अलग हो जाते हैं। कई बार कुछ बहनें या कुछ जन परमेश्वर के दास गणों के पास आकर प्रार्थना करवाते हैं या स्वयं भी प्रार्थना करते हैं। वो ये कहते हैं परमेश्वर, कई बहनें परमेश्वर के दासों के पास आके कहती हैं, प्रभु के दास के पास आके कहती हैं, पादरी साहब ये प्रार्थना कीजिए कि मेरे पति का जीवन बदल जाए। और बड़े विश्वास से वो प्रार्थना करवाती है, लेकिन कुछ दिन के बाद अक्सर वो ये कहती हैं, मेरे पति ने तो कभी बदलना ही नहीं है। यानी उनका विश्वास और उनका मुंह का अंगीकार एक समान नहीं है, और यही कारण है कि उनके जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं हो पाते।
बाइबल ये कहती है कि हमारे मुंह के शब्द एक बीज हैं, हम जो बोएंगे वो काटेंगे, हमें उनके ऊपर ध्यान देना है। जब हम तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, पवित्र आत्मा का दान पा लेते हैं, मैं समझता हूं हम उस आदम के समान बन जाते हैं जिसे परमेश्वर ने अदन के बाग में बनाया। और जब आदम बना था तब वो पवित्र था, वो पापी नहीं था। बनते समय वो पवित्र था। और जब हमने तौबा किया, बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा का दान पाया तो हमारे पाप धुल गए, हम भी पवित्र हो गए। और वो आदम जो अदन के बाग में बना था, वो आदम परमेश्वर के स्वरूप उसके समानता में था। और ये सच है कि परमेश्वर के मुंह के शब्द कभी बदलते नहीं। परमेश्वर के मुंह का शब्द कभी बदलता नहीं। अगर परमेश्वर के मुंह के शब्द कभी नहीं बदलते और परमेश्वर के मुंह के शब्दों में रचना है, यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय 1 आयत हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा, आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था और सब कुछ उसके द्वारा रचा गया। यानी शब्द में क्रिएट करने की, रचना करने की सामर्थ्य है। अगर परमेश्वर के शब्दों में क्रिएट करने की, रचना करने की सामर्थ्य है तो हम जब तौबा करते, बपतिस्मा लेते और पवित्र आत्मा का दान पाते, हम उस आदम के समान बन जाते हैं जो अदन के बाग में परमेश्वर ने बनाया। और वो आदम बनते समय पवित्र था क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप उसकी समानता में था। और अगर हम उस आदम के समान बन जाते हैं बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा का दान पाने के बाद, तो मैं कहना चाहूंगा हम भी परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में लौट आते हैं। यीशु मसीह ने यही किया। वो आए संसार में और उन्होंने, मनुष्य ने परमेश्वर की समानता खो दी थी और यीशु मसीह ने उस समानता को वापस लौटाया। और मैं कहना चाहूंगा अगर परमेश्वर के शब्द नहीं बदलते तो जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो हमारे मुंह के शब्द भी नहीं बदल सकते। इसलिए एक मसीह विश्वासी को बड़ा सोच समझ कर अपने मुंह से बोलना चाहिए कि वो क्या बोलता है। और जहां तक मैंने बाइबल का ज्ञान पाया या जो कुछ सीखा पवित्र आत्मा के द्वारा, मुझे समझ आया कि बाइबल को ध्यान से पढ़ने से मालूम पड़ता है बीमारी एक दुष्ट आत्मा है, गरीबी एक दुष्ट आत्मा है, कर्जा भी एक दुष्ट आत्मा है। अगर बाइबल को और ध्यान से पढ़ें तो लड़ाई, झगड़ा और कलेश भी एक दुष्ट आत्मा है। बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं परमेश्वर का आत्मा मेल मिलाप का आत्मा है, तो झगड़े का आत्मा शैतान का है। पास्टर जी, मैं आई हैव टू स्टॉप यू हियर जस्ट फॉर थोड़ी देर के लिए हम एक ब्रेक पे, छोटी ब्रेक पे जाएंगे, देन वी विल कम बैक। एंड प्लीज जाना नहीं किधर भी, कीप ऑन वॉचिंग। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो पादी साहब ने आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एंड वी गॉट a singer all the way from India, इंडिया से आए हो लेकिन यहाँ पे रहते हैं अभी, and she be singing with us. Okay, God bless you. Don't go away. Stay tuned.
ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਇੱਕ ਦਫੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਐਂਡ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਅਸ ਦ ਸਟੂਡੀਓ ਜੋ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ and the Bible says ask anything in my name and I will give it to you ठीक है so Jesus is the answer for सब प्रार्थना जो आप तेरी हैं वो Jesus ही उनका जवाब है पर लेकिन इस तो असी आगे जावांगे और पास्टर जी अब जो आप बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आप हमारे साथ व्यूअर के साथ शेयर कर रहे थे प्लीज कीप ऑन कंटिन्यूस जी थैंक यू फिर से शुरू करते हैं और आपके साथ शेयर कर रहे थे कि अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि गरीबी भी एक दुष्ट आत्मा है, बीमारी भी एक दुष्ट आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान कई बीमारियों को ये कहकर आज्ञा दी कि बीमारी की आत्मा इसको छोड़ के जा, यानी बीमारी एक दुष्ट आत्मा है। लड़ाई झगड़ा क्लेश ये भी एक दुष्ट आत्मा है, वैर विरोध भी एक दुष्ट आत्मा है। बाइबल को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है नशा भी एक दुष्ट आत्मा है। जो लोग नशा करते हैं उनको वो आत्मा बार बार प्रेरित करती है, उनको बार बार उनको उकसाती है कि वो जाए और नशा करें। अगर झगड़ा एक दुष्ट आत्मा है, गरीबी एक दुष्ट आत्मा है, बीमारी एक दुष्ट आत्मा है, कलेश एक दुष्ट आत्मा है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा प्रिय श्रोतागणों, प्रिय दर्शकों। हम कई बार अपने जीवन के अंदर अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में कुछ गलत अंगीकार कर लेते हैं। और मैंने कई लोगों को कहते सुना कि मेरा घर तो कलेश का घर है, और मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमने सुना कलेश तो एक दुष्ट आत्मा है, और इस रीति से बड़ी आसानी से अपने घर के ऊपर दुष्ट आत्माओं को अधिकार दे देते हैं। और अपने घर के ऊपर कई लोगों को मैंने कहते सुना मैं तो बीमारी में ही मर जाऊंगा, और ऐसे लोग फिर अक्सर देखा जाता है कि वो बीमारी के बिस्तर पर हॉस्पिटलों में ही अपना आखिरी सांस लेते हैं। सो हमें अपने बारे में अच्छा अंगीकार करना है। हमारे मुंह के शब्द एक बीज हैं। मैं कहना चाहूंगा आपको अंत में इस बात को आखिरी में बंद करते समय मैं बहुत एक बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात बोलना चाहूँगा। अगर परमेश्वर के शब्दों में रचना करने की सामर्थ्य है और यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की समानता में वापस लौटते हैं, तो हमारे शब्दों में भी रचना करने की सामर्थ्य है। मैं कहना चाहूँगा अगर रचना ही करनी है तो कुछ अच्छी करें, और क्यों ना आज के बाद एक अच्छा अंगीकार करें और हम ये कहना शुरू करें मेरा घर तो आशीष का घर है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं एक अच्छी हेल्थ पाऊंगा। क्यों ना हम अपने लिए अच्छे अच्छे अंगीकार करें, बजाय ये बात कहने के कि मेरे जीवन में बहुत सारे दुख हैं और मेरे आने वाले दिन बड़े खराब दिन हैं, बजाय इसके हम ये कहने के हम अपने मन में और अपने मुंह से कुछ नए अंगीकार करें और अपने मुंह से कहना शुरू करें मेरे आने वाले दिन मेरे जीवन के सबसे अच्छे दिन हैं, मेरा घर दुनिया का सबसे आशीषित घर है, मेरी पत्नी दुनिया के अंदर मेरी पत्नी सबसे अच्छी है, मेरा पति सबसे अच्छा है, मेरे बच्चे आशीषित हैं। हम अपने आप को, अपने परिवार को और अपने घर को और अपने आने वाले दिनों को आशीष देना शुरू करें। और मैं कहना चाहूँगा अगर हमारे मुंह के शब्द बीज हैं, अपने लिए कुछ अच्छा बोइए, अपने लिए कुछ अच्छा बोइए। प्रियो, एक बात और मैं बोलना चाहूँगा अंत में, कई बीज देरी से उगते हैं। हमने आज अपने घर के अंदर, घर के आंगन में एक आम का छोटा पौधा लगाया, वो कल ही तो आम उसके ऊपर से नहीं हम ले पाएंगे आम लगने के लिए समय लगेगा। कई बार कुछ लोग अपनी पत्नी, अपने बच्चों के बारे में ये अंगीकार करते हैं तो मरता भी नहीं, इस पे तो मौत भी नहीं आती। और प्रियो, वो जब ऐसे अंगीकार अपने मुंह से करते हैं और कई सालों के बाद जब अचानक से डायग्नोज होता है कि इनको ब्रेन ट्यूमर निकला, फिर ऐसे लोग पछताते हैं मैंने तो कभी किसी को कुछ बुरा किया ही नहीं। और ये ब्रेन ट्यूमर कहाँ से आ गया? जैसे आम के छोटे पौधे में फल लगने के लिए टाइम लगता है, कई बार बीज फल बनने में टाइम लगता है, लेकिन ये सच्चाई है। बाइबल कहती है हम जो बोएंगे वो काटेंगे, और आपके मुंह के शब्द एक बीज हैं। इसलिए आज के बाद अपने लिए कुछ अच्छा बोना शुरू करें, कुछ अच्छे अंगीकार करना शुरू करें, और अपने बारे में जो नकारात्मक बातें हैं उनको यीशु मसीह का नाम लेकर रद्द करें, और आज के बाद अपने लिए सकारात्मक और अच्छे 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 अंगीकार करने शुरू करें। और फिर देखिए परमेश्वर हर दिन आपको ब्लेस करेगा। हर रोज सुबह उठने के बाद हमें एक अच्छा अंगीकार करना चाहिए, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। हमें ये अंगीकार करना चाहिए मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा घराना संसार का सबसे आशीषित घराना है, और आप देखेंगे वैसा होना शुरू हो जाएगा। बी पॉजिटिव, हमेशा अपने लिए अच्छे अंगीकार करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दें। और हम चाहेंगे इस समय
कि हम आपके लिए दुआ करें, परमेश्वर के सब जन मिलकर। और जितने मेरे भाई बहन ये चाहते हैं कि उनके लिए दुआ की जाए, जिन्होंने अपने जीवन में गलत अंगीकार किए हैं, ये कह सकते हैं कि अपने शब्दों का गलत बीज बोया है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने रिलेशंस के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने आने वाले दिनों के लिए, मैं चाहूँगा कि आए हम मिल के दुआ करें और उन बातों को स्वयं अपने ही मुंह से रद्द करें। और मैं चाहूँगा इस समय आंखों को बंद करें और हम दुआ में शामिल हों। अनुग्रहकारी और करुणामय पिता परमेश्वर, मैं आपके सेवकों के साथ मिलकर, आपकी बेटी के साथ मिलकर, एक आत्मा में होकर इस समय इन तमाम दर्शकों के लिए प्रभु, जो आपके बेटे बेटियां आपके पवित्र वचन को इस समय सुन रहे हैं प्रभु, आज हमने वचन के द्वारा मनन किया कि हमारे मुंह का अंगीकार सकारात्मक होना चाहिए। हमारे मुंह के शब्द एक बीज हैं, हम जो बोएंगे हम वही काटेंगे। अनुग्रह करे प्रभु, ताकि आज के बाद हम अपने लिए सकारात्मक अंगीकार कर सकें। और प्रभु, मैं आपका दास होने के नाते इस समय हर एक उस दर्शक के साथ मिलकर ये दुआ करता हूं जिन्होंने आज तक अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने परिवार के लिए नकारात्मक अंगीकार किए हैं, और उन नकारात्मक अंगीकारों को हम मसीह यीशु के नाम से आज रद्द करते हैं। और आज हर एक उस दर्शक के लिए जो इस प्रोग्राम को सुनता है, हम आशीष को बोलते हैं, हम आशीष को बोलते हैं और हम कहते हैं, आए पिता, आपके पुत्र यीशु की आशीष इनके जीवन में बहुत ऐद से आए, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके लिए आशीषों के नए द्वार खुल जाएं। और हम कहते हैं आज यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक बीमार के ऊपर एक अलौकिक चंगाई उतर आए। और हम आज कहते हैं यीशु मसीह के नाम से हर एक वो आशीष का द्वार जो अब तक बंद था इनके लिए, आज यीशु मसीह नासरी के नाम से वो खुल जाए और अपने जीवन में बहुत ऐद की आशीष पाने पाए। और प्रभु, मेरी विनती और प्रार्थना है, हर एक वो घराना, हर एक वो दर्शक, हर एक वो मेरा भाई और बहन जो आज इस कार्यक्रम को सुनता है, आपके नाम में आशीषित हो। और प्रभु, आने वाले दिन, आने वाले समय इनके लिए आशीषों से भरे दिन और समय हों। और प्रभु, ये हर दिन अपने जीवन में एक नई आशीष को देखने पाए। आज हम मिलकर अंगीकार करते हैं कि प्रभु, अब ये बीमार नहीं बल्कि आपके कोड़ों की मार की सामर्थ्य के द्वारा चंगे हो चुके हैं। और प्रभु, हम ये विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं कि आप इनके घर में अपने मेल मिलाप की आत्मा के द्वारा कार्य करें, उन परिवारों को फिर से अपने सामर्थ्य हाथ के द्वारा आप पुनर्निर्माण करें जो टूट चुके थे। और प्रभु, हर एक श्रोतागण के ऊपर आप अपनी, हर एक दर्शक के ऊपर आप अपनी उन आशीषों को जो पवित्र शास्त्र में लिखी हैं इस समय उंडेल रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद सहित इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता मसीह प्रभु के नाम से इस दुआ को मांगते। आमीन। 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 इट वाज वंडरफुल। बहुत अच्छा मैसेज जो पास्टर जी ने दिया। जेनिफर, लेट मी कम टू यू। आपने सुना, मैंने भी सुना, हमारे जो लोग आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सब ने सुना। आप एज अ सिंगर, आप इसके ऊपर कुछ सॉन्ग, कोई आपने कुछ, कैन यू से 1 or 2 lines on this? जी ज़रूर। आप तो मुझे एक्सटेम्पर स्पीच बोलने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जब हम खुदा के लिए होते हैं और खुदा की प्रेजेंस में हैं तो खुदावन अपने आप वचन को और वो ऐसी बातें डालते हैं जो कि वचन से कोरिलेट करते हैं। तो मैं बहुत खूबसूरत, पास्टर साहब, सबसे पहले आपको कहना चाहूँगी, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी ऑल आर सो ब्लेस्ड। और आई एम वेरी मच श्योर कि जितने भी लोग देख रहे हैं इतने ज़्यादा ब्लेस्ड होंगे, क्योंकि जो आपने जो टॉपिक लिया वो बहुत ही जनरल, लाइक बाइबल में से जो बातें आपने बताई, हम जनरली कितनी बार बोलते हैं कि हाँ ठीक है, काफ़ी लोग नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं तो हमारे मुंह से कुछ नेगेटिव नहीं निकलता। बाय गॉड्स ग्रेस हम हर चीज़ में पॉजिटिव बात करते हैं और हर चीज़ पे विश्वास के साथ बोलते हैं नहीं ये अच्छा होगा। तो जो आपने वचन दिया, मैं उसके ऊपर 2 लाइनें गाना चाहूँगी। वे जो रोते हुए बोते हैं वे काटेंगे खुशी से, गम ही देता है तसल्ली, ये सिखाया है मसीह ने। वे जो रोते हुए बोते हैं वे काटेंगे खुशी से, गम ही देता है तसल्ली, ये सिखाया है मसीह ने।
गर रुलाती है तुझे रात तो घबराना नहीं, गर रुलाती है तुझे रात तो घबराना नहीं, आती है भोर सुहानी तेरी खुशियों से भरी, आती है भोर सुहानी तेरी खुशियों से भरी, वे जो रोते हुए बोते हैं वे काटेंगे खुशी से। बहुत खूब, बहुत खूब, एकदम मैसेज के साथ just related. Secretary साहब, do you think we should, आप जेनिफर से कुछ और सुने, पर लेकिन इसे सुनने से पहले आप क्या बोलेंगे? जेनिफर को मैंने मेरे ख्याल इनकी शादी से पहले ऑक्सफोर्ड में सुना था जी जी, और उसके बाद एक दफ़ा मौका मिला गुड न्यूज़ एशियन चर्च में जी, और वहाँ से मैंने आपकी सीडी भी ली थी। अच्छा तो अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं बता दूं कुछ पास्टर जी कुछ अपने पास प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट आई है जी, मैं उनके नाम पढ़ देता हूँ, फिर बाद में उनके लिए दुआ की जाएगी या अभी करेंगे? बाद में करेंगे, तो फिर बाद में करेंगे। अच्छा, प्रे कौन सा नाम है? जी, एक मिसेस सरदारा मट्टू जी, जो हॉस्पिटल में है, बीमार है, उनके लिए दुआ की जाए। मिसेस दास वो भी बीमार हैं, उनके लिए दुआ की जाए। मिसेस राय हैंड्सफोर्ड से हैं, उनके लिए भी दुआ की जाए। और एक अमरजीत बंगर हमारे हैं, उनके लिए भी दुआ की जाए। अंजलि बेटी के लिए भी दुआ की जाए। इन सब के लिए दुआ की जाए, परमेश्वर इनको तंदुरुस्ती दे। So can we ask Pastor Jeet to pray for them before we go further? यस सर, आइए हम मिलके दुआ करें। अनुग्रहकारी करुणामय पिता परमेश्वर, हम आपके दासगण मिलकर ये दुआ करते हैं। आपका वचन कहता है जहाँ दो व्यक्ति एक मन के होकर जो कुछ ज़मीन पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, ज़मीन पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। आपने कहा मेरे नाम से। और आज पिता हम आपके नाम से दुआ करते हैं, ये जितने भी नाम इस समय इस लिस्ट में लिखे हैं, हम उनके विषयों को आपके सन्मुख लेकर आते हैं। इनमें जितने भी बीमार हैं इस समय आप अपना कामिल और पवित्र हाथ बढ़ाकर आप उन्हें स्पर्श करें प्रभु, ताकि उनकी बीमारी की अवस्था बदल जाए और इसी समय वो आपके अलौकिक स्पर्श के द्वारा चंगे हो जाए और उनकी बीमारी कोई भी क्यों ना हो, हम अधिकार से कहते हैं यीशु के नाम में, वो उनके शरीरों को छोड़कर चली जाए। और प्रभु हम खास इस समय दुआ करते हैं और भी जितने भाई बहन हैं जो किसी भी मुश्किलात में हैं, परेशानी में हैं, किसी भी बंधन में हैं, आप उन्हें हर मुश्किलात से बाहर निकालें, हर परेशानी से आज़ाद करें और हर बंधन को तोड़कर अपनी भरपूरी की आशीष को उनके जीवन में उड़ेलें। विनती यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। जी सर, सेक्रेटरी साहब, आप जेनिफर से आई वी आस्क इफ शी कैन सिंग। Yes, why not? Jennifer, if you can sing, I think you must have chosen your favorite one. और परमेश्वर की तारीफ में आप कुछ भी कहेंगी तो सभी को पसंद आएगा। ऐसे काफ़ी सॉन्ग्स हैं, जैसा कि मेरी सीरीज़ भी है, लेकिन स्पेशली जब इतने सारे लोग देख रहे हैं और बहुत लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम को, तो मैं वो गाना चाहूँगी क्योंकि जो खुदावन हमारे जीवन से हम सब से एक्सपेक्ट करता है, लॉर्ड मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर पीस। तो वो गीत मैं गाना चाहती हूँ। म्यूज़िक प्लीज़।
हे प्रभु साधन बना लो मुझको अपनी शांति का। हे प्रभु साधन बना लो मुझको अपनी शांति का। हो जहाँ नफरत वहाँ मैं प्रीति भर दूँ। हो जहाँ आघात वहाँ क्षमा भर दूँ। हो जहाँ शंका वहाँ विश्वास भर दूँ। हो जहाँ शंका वहाँ विश्वास भर दूँ। ऐसा तुम वर दो, ऐसा तुम वर दो। हे प्रभु साधन बना लो मुझको अपनी शांति का। हे प्रभु साधन बना लो मुझको अपनी शांति का। हो जहाँ निराशा में आशा जगा दूँ। हो जहाँ अंधकार में ज्योति भर दूँ। हो जहाँ खिन्नता में हर्ष भर दूँ। हो जहाँ खिन्नता में हर्ष भर दूँ। ऐसा तुम वर दो, ऐसा तुम वर दो। हे प्रभु साधन बना लो मुझको अपनी शांति का। हे प्रभु साधन बना लो मुझको अपनी शांति का।
ओ स्वामी मुझको ये वर दो कि मैं सांत्वना पाने की आशा ना रखूं, सांत्वना देता रहूं, समझा जाने की आशा ना रखूं, पर समझता ही रहूं, प्यार पाने की आशा ना रखूं, प्यार देता ही रहूं, त्याग के द्वारा ही प्राप्ति होती है, माफी के द्वारा ही माफी मिलती है, मृत्यु के द्वारा ही जीवन मिलता है, जीवन अमर, जीवन अमर, जीवन अमर। थैंक यू। बहुत खूब। It's such Thank a you. privilege to have a voice like that in the studio, and ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇੱਕ नेमत, एक बरकत दी थी। पादी साहब, व्हाट डू यू से? मैं कहूँगा कि ये जो भजन है जी, ये जो भजन हमारी बहन ने गाया है, ये उत्साह करने का भजन है। बिल्कुल। ये भजन हमें सिखाता है कि हमें दूसरों को खड़ा करना है जी, और हमें सांत्वना पाने वाले नहीं बल्कि सांत्वना देने वाले बनना है। बिल्कुल। और यकीन बहुत अच्छा, बहुत खूब। थैंक यू, Well थैंक यू। Praise the Lord. अगर I'm going to ask Jennifer if she can come tomorrow at Wolverhampton United Reformed Church. I don't know whether she can or she can't. We'll anyway, if I'm sure she can, but अगर सुनना चाहते हो, she said she can. अगर if you want to listen to Jennifer, you come tomorrow at Lee Road United Reformed Church, and further information you can call me after the program, and she's going to be there singing for you different songs, and she's really talented. And Pastor Ji also coming there to share the word of God. Obviously he's preaching in West Bromwich tomorrow, Trinity Street, Holy Trinity Street Church in West Bromwich, uska postcode hai B76LF. Uske baad he Pastor Ji will be preaching, sharing the word of God with us tomorrow at the Lee Road United Reformed Church. दोस्तों पैरों ते पाइए बने रहिए। खुदावंद तेनू बड़ी बरकत देवे। It was really nice to have Pastor Ji and Jennifer and साडे अपने सैमुअल साहब ते अगले हफ्ते फिर तेरे नाल इसी तरह मुलाकात होगी। उन्हें चिर खुदावंद च बने रहिए। Pastor Ji, 30 seconds you got, if you can just pray for Sister Nicola Das and husband. हाँ, हम दुआ करेंगे। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हमारे भाई गुरचरण दास के लिए। प्रभु आप उन्हें इस समय अपना पवित्र हाथ बढ़ाकर छुइए। हम विनती करते हैं कि वो इसी समय चंगे हो जाएं और आपकी सामर्थ्य उनके जीवन में काम करें, यीशु के नाम से आमीन। दोस्तों भैन ते भैया, इस समा सानू इजाजत नहीं दे रहा, घड़ी बड़ी तेजी ने जा रही है, बंद होने वाली है। वी थैंक यू सो मच। बने रहिए। खुदावंद तेनू बड़ी बरकत देवे। अगले हफ्ते इसी स्टूडियो फिर तेरे नाल मुलाकात होगी। उन्हें चिर लिए सानू इजाजत दीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। साडे साथ दे बनो। जय मसीह की। जय मसीह की।